بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں آئی جی جیل خانہ جات منور شاہ کی تقرری کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے آئی جی جیل خانہ جات منور علی شاہ کی تقرری کالعدم قرار دے دی۔ عدالت نے آئی جی جیل خانہ جات منور شاہ کی تقرری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ مزید بات کریں گے، ممتاز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ممتاز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، آج سندھ ہائی کورٹ کراچی نے آئی جی جیل خانہ جات منور علی شاہ کی تقریر کے خلاف درخواست پر سماعت کی ہے، جس پر عدالت نے آئی جی جیل خانہ جات منور علی شاہ کی تقریر کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے آئی جی جیل خانہ جات منور شاہ کی تقریر کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دے دی ہے۔ اس کیس میں درخواست دار کے وکیل اسد اشفاق کا کہنا ہے کہ آئی جی جیل خانہ جات کا عہدہ 21 گریڈ کا ہے، جبکہ آئی جی جیل خانہ جات منور علی شاہ 20 گریڈ کے افسر ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ سندھ حکومت نے 13 اکتوبر 2023 کو ڈی آئی جی جیل خانہ جات تک منور شاہ کو آئی جی جیل خانہ جات کا عارضی چارج دیا تھا۔ اس کے بعد سندھ حکومت نے منور علی شاہ کو 1 نومبر کو آئی جی جیل خانہ جات کا مستقل چارج دیا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ منور علی شاہ کی بطور آئی جی جیل خانہ جات تعیناتی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ موجودہ آئی جی جیل سے سینئر افسران موجود ہیں، یہ ان کی حق تلفی ہے۔ انہوں نے درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا ہے کہ منور علی شاہ کچھ دنوں پہلے مس کنڈکٹ کے الزام میں معطل تھے، انہیں اس عہدے پر نوازنے کے لیے بحال کیا گیا ہے۔ سندھ حکومت سے انہوں نے استدعا کی ہے کہ آئی جی جیل خانہ جات کے عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا جائے۔ جی اچھا ممتاز، یہ بھی بتائیے گا کہ باقاعدہ جو ہے اب وہ کارروائی کی جائے گی جو بھی الزام بھی لگائے جا رہے ہیں ان پر؟ بالکل، دیکھیں، الزامات پر کارروائی تو ممکن اس وقت نہیں دکھائی دے رہا، لیکن انہوں نے صرف چیلنج کیا تھا تقرری کے نوٹیفیکیشن کو، جو کہ عدالت نے اس وقت جو ہے تقرری کے نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی جیل خانہ جات منور علی شاہ اپنے کیس میں یہاں عدالت میں آتے ہیں، اگر آئیں گے تو ان کے وکلا جو ہے وہ عدالت میں دلائل دیں گے۔ فی الحال جو ہے ان کے جو تقرری کا نوٹیفیکیشن تھا وہ عدالت نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ممتاز جمالی ہمیں اپڈیٹ کرے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ میں آئی جی جیل خانہ جات منور شاہ کی تقرری کے خلاف درخواست پر یہ سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے آئی جی جیل خانہ جات منور علی شاہ کی تقرری کالعدم قرار دے دی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور سندھ میں وزیر اعلیٰ کے لیے سید مراد علی شاہ کے نام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مراد علی شاہ تیسری بار وزیر اعلیٰ سندھ ہوں گے۔ تمام ارکان اسمبلی کو کراچی پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، جبکہ سندھ کابینہ کے لیے ابتدائی طور پر 20 ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس پر مزید اپڈیٹ حاصل کریں گے، عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاجز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی ہاں، بالکل، وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے تیسری بار سید مراد علی شاہ کا نام آ رہا ہے اور ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، چیئرمین ہیں، انہوں نے اس بات کی منظوری دے دی ہے کہ سندھ کے آنے والے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہی ہوں گے، اور اس کے لیے تمام ارکان جو ہے اپنے اپنے آبائی گاؤں گئے ہوئے، ان سب کو کہا گیا ہے کہ فوری طور پہ کراچی پہنچیں۔ آنے والے 2 سے 3 روز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس متفق ہے۔ اس اجلاس میں ان تمام چیزوں کو فائنل کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں اسپیکر کے نام کا اور ڈپٹی اسپیکر کے نام کی بھی منظوری دی جائے گی، جس کے لیے ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کے لیے ابھی بھی آغا سراج درانی کا نام سر فہرست ہے، البتہ ڈپٹی اسپیکر کے نام کو ابھی تک فائنل نہیں کیا گیا ہے۔ سندھ کابینہ کے مختلف ناموں پر غور ہو رہا ہے، خاص طور پہ جتنے بھی سینئر وزراء تھے سابقہ کابینہ میں، ان تمام کے نام لیے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پہ 20 رکنی کابینہ ہوگی، جس میں سید ناصر حسین شاہ، سعید غنی، شرجیل انعام میمن، عذرا فضل پیچو، سردار احمد شاہ سمیت مختلف وزراء کے نام لیے جا رہے ہیں۔ سید اویس شاہ کا نام لیا جا رہا ہے، کراچی سے ساجد جوکھیو اور سینیٹر یوسف بلوچ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس طرح مختلف وزراء کے نام لیے جا رہے ہیں۔ ان تمام معاملات کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے اس میں حتمی شکل دی جائے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ بہت جلد پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا، چونکہ سارا معاملہ اسلام آباد میں رکا ہوا ہے۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے اجلاس بلانے کے لیے جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کا آج فائنل راؤنڈ ہے، سنا جا رہا ہے، تو اس میں بھی کافی سارے معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ جیسے ہی وفاقی حکومت کے معاملات طے ہوتے ہیں، اس طرح صوبائی حکومتوں کے معاملات بھی طے ہونا شروع ہوں گے، جبکہ یہاں سندھ اسمبلی میں اس وقت میں موجود ہوں۔
तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। किसी वक्त भी सिंध असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है। जैसे ही इजलास बुलाने का हुक्म होगा, नोटिफाइड होगा, वैसे ही इजलास हो जाएगा। तो ये तमाम तर सिंध की हुकूमत साजी के लिए तैयारियां हैं यहाँ पर सूबा सिंध में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जिसके पास सूबाई हुकूमत बनाने के लिए वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है। जी, आतिश जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध में वज़ीर आला के लिए सैयद मुराद अली शाह के नाम की मंजूरी दे दी गई है। मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला सिंध होंगे। आतिश बताइएगा, मुखालिफिन की जानिब से जो है वो इस नाम पर एग्री नहीं किया जा रहा था। MQM हो गए, दूसरी जो जमातें हैं वो तो अभी धांधली में डूबी हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल मुखालिफिन का अपना मौक़िफ़ हो सकता है। यहाँ पर दूसरी पार्टी पोजीशन जो है दूसरे नंबर पे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दूसरी बड़ी पार्टी है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हुआ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपोजिशन में होगी या सिंध हुकूमत का हिस्सा होगी, चूँकि जो वफाकी हुकूमत की तश्कील है उसमें MQM पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसी तरह दूसरे सूबों में इत्तेहादी हुकूमतें होंगी, जिस तरह बलूचिस्तान का नाम लिया जा रहा है, पंजाब का नाम लिया जा रहा है। तो इस तरह अगर सिंध में इत्तेहादी हुकूमत बनती है तो यकीनन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत का हिस्सा होगी, लेकिन फ़ैसला वही होगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी, चूँकि उनके पास अक्सरियत है। या फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनती है सिंध में, तो फिर वो वज़ीर आला के लिए, वज़ीर आला के लिए या तो अपना नाम लाएंगे या फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम होगा उसकी मुखालिफत करेंगे। जबकि उसके अलावा दीगर जमातों के पास 10-11 नशस्तें हैं, आज़ाद उम्मीदवारों के पास हैं, आज़ाद हैं, जबकि 2 जमात इस्लामी के पास नशस्तें हैं, 2 GDA के पास हैं। तो ये तमाम जमातें मिलकर भी उतनी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती कि वज़ीर आला सिंध के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का मुकाबला कर सकें। तो इस तरह होगा तो वही जो पीपल्स पार्टी का फ़ैसला होगा। अलबत्ता दीगर जमातों की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर उसकी मुखालिफत की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिश जमाली, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। महकमा स्कूल तालीम में जूनियर क्लर्क के ओहदे पर तैनात शहजाद अली चांदियों की मैट्रिक की डिग्री जारी निकली है। महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल तालीम की जूनियर क्लर्क शहजाद अली चांदियों की डिग्री को तालीमी बोर्ड हैदराबाद ने बाज़ाब्ता तौर पर जाली फेक करार दे दिया। इस और महकमा एंटी करप्शन के खत पर तालीमी बोर्ड हैदराबाद ने महकमा एंटी करप्शन को एक वज़ाहती खत अरसाल करके उन्होंने लिखा है कि उनकी जो डिग्री जो तालीमी बोर्ड हैदराबाद को अरसाल की गई है, डिग्री मुबैना तौर पर जाली है, जिसके बायस महकमा एंटी करप्शन ने महकमा स्कूल तालीम को एक खत अरसाल करके इन्हें के खिलाफ जो शहजाद अली चांदियो है जूनियर क्लर्क, उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। जबकि शहजाद अली चांदियो इस वक्त जूनियर क्लर्क गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जो सेकेंडरी स्कूल है दरसान और छिनो, वहाँ पर तैनात जो वाकई जिले मलिरी में, लेकिन इस वक्त महकमा एंटी करप्शन उनके खिलाफ जो है तहकीकात का आगाज कर दिया और महकमा स्कूल तालीम को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नौरियो। मेरा शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बन रहा? खातून नादरा के खिलाफ शिकायत लेकर अदालत पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर इदारे से जवाब तलब कर लिया है। अपडेट करेंगे मुमताज़ जमाली। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने खातून का शनाख्ती कार्ड ना बनने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। खातून सीरत फातिमा का कहना है कि उनकी बेटी का शनाख्ती कार्ड भी बन गया, उनके शौहर का शनाख्ती कार्ड भी बन गया, लेकिन उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा। उनको हज और उम्रा पे जाना है, लिहाजा शनाख्ती कार्ड ना बनने की वजह से वो जा नहीं सकते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 2 साल तक जो मौसब आला है वहाँ पर भी दरख्वास्त दी, वहाँ पर भी चक्कर काटे, लेकिन बाद में उनका ये कहना था, मौसब आला की जानिब से जो फैसला आया कि आप जो है अदालत से रुजू कर रहे। उनका कहना था कि नादरा ने टोकन के पैसे भी लिए 2500 रुपये, लेकिन वो कह रहे हैं कि अदालत का फैसला चाहिए। लिहाजा अदालत ने नादरा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है और इस दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 29 फरवरी तक मुलतवी कर दी है।
गैस की बढ़ती कीमत के असरात सामने आने लगे हैं। भारी गैस के बिलों से शहरी परेशान हो गए हैं। 1000 रुपये वाले गैस के बिल बढ़कर 8 से 10,000 रुपये तक पहुंच गए हैं। खवातीन की बड़ी तादाद मेगा सेंटर पहुंच गई है। तफसीलात जानते हैं, अयाज राना वहां पर मौजूद हैं, जी बताएगा। जी बिल्कुल, जहाँ आप देख रहे हैं कि हालिया दिनों में जो गैस की कीमतों में इजाफा किया, अब उसका जो है समरात सामने आने शुरू हो चुके हैं। मेगा सेंटर पे जो है वो आवाम परेशान हो रही है, क्योंकि जहाँ बिल 1000, 1500, 2000 के थे, वो अब 8-8, 10-10 हज़ार रुपए के बिल आए। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो इस वक्त मेगा सेंटर आए हैं। सर, क्या वजूहत हैं, क्यों यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं? यहाँ के चक्कर यूँ लगा रहे हैं, कभी हम इधर नहीं आए, इस पर ट्रस्ट करते थे, भरोसा था कि ये वाहिद महकमा हमारा ये क्लियर चलता है, मगर ये 11,000 रुपये का बिल भेजा है। गैस बिल्कुल भी नहीं है, सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, बाजार से भी गैस खरीद रहे हैं और प्रॉपर इनको है ना हर महीने पैसे भी दे रहे हैं। कभी हमने इस दर के चक्कर नहीं लगाए, अब हमारे को यहाँ चक्कर लगाना पड़ रहा है। जॉब पे जाएं, इस बिल के लिए पहले इधर आए, कोई पुरसाने हाल नहीं, और 2 घंटे 3 घंटे बाद फिर अभी ये टोकन देंगे तो हमारा यहाँ पे नंबर आएगा। यहाँ पे एक बड़ी तादाद जो है वो खवातीन की आ गई है, जो कि अपने हाथों में बिल उठाए हुए हैं और ये शोर मचाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अब ये इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताएं क्या हुआ? गैस आ रहा नहीं है और बिल दे रहे हैं 12-12 हज़ार के, ये तो गलत बात है ना। और मेहमान आ रहे हैं, क्या हुआ? गैस नहीं आ रहा है और बिल भी आ रहे हैं। ये रहा ना, तो मेरे हाथ में है ना बिल, 6,000 का बिल आ रहा है। 8-8 हज़ार रुपए के बिल हैं। यहाँ खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ अपने गैस के बिल लेके आई है। ये खातून बता रही है ये इनका बिल है जो 27,000 रुपए का बिल इनको भेज दिया है। तो आपका ये बिल देखें, 12-12 हज़ार के बिल आ रहे हैं और बोल रहे हैं वहाँ पे ना कनेक्शन खराब है, तो बिल कहाँ से आ रहे हैं? कनेक्शन खराब है, मीटर में ताला हमने लगाया हुआ है, फिर भी 7-7, 8-8 हज़ार के बिल भर रहे हैं। 3 महीने 5 महीने से चक्कर काटा है, हमेशा बोलते हैं हम सही करवा रहे हैं, मगर आज तक नहीं आए। अब आवाम का जो रद्द अमल है वो सामने आना शुरू हो गया। जहां हमने देखा था, रिपोर्ट कर रहे थे कि अब IMF के कहने के ऊपर जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, अब खवातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ अपना बिल लेके आई है, जो एहतजाज कर रही है कि जो छोटे छोटे उनके बिल 800, 1000 रुपए वाले बिल जो है वो 8-8, 10-10 हज़ार रुपए के बिल जो है वो भेजे जा रहे हैं। जी। और दूसरी जानब अगर बात करें तो शहर कायद में मसाला जात की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। डॉलर की कदर में अदम इस्तेहकाम के बायस मसाला जात 6 माह में कई गुना ज़्यादा महंगे हो गए हैं। इस पर अपडेट हासिल करेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। जी बिल्कुल, मुल्क में मसाला जात जो हैं मुख्तलिफ ममालिक से दरामद किए जाते हैं, लेकिन मसाला जात की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। साबुत मसालों की कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहाबुद्दीन मार्केट के सदर मोहम्मद असलम, इनसे जानते हैं। असलम साहब, जो मसाला जात की कीमतों में कितना इजाफा है और बुनियादी तौर पर वजूहत क्या है, और कौन कौन से ममालिक से दरामद होकर पाकिस्तान आते हैं? बात यह है कि हमारे मुल्क में तमाम गर्म मसाले बाहर से आते हैं, दरामद होकर के। ज़ीरा ईरान से भी आता है, ज़ीरा इंडिया से भी आता है, काली मिर्ची आती है वियतनाम से भी और आती है ब्राज़ील से भी। जो अपना बर्मा है वहाँ से दालचीनी आती है, वहाँ से इमली आती है। मकसद मेरे कहने का ये है कि तकरीबन पूरी दुनिया से ही हमारे यहाँ चीज़ें दरामद की जाती हैं। और अफसोस ये है कि हमारे मुल्क का पैसा जब होता है बराबर में डॉलर के, शोर होता है। अब मामला कुछ ऐसा है कि जब यहाँ खरीदारी निकल आती है तो दाम बढ़ जाते हैं। और जो है अपना इस वक्त पोजीशन ये है कि हर गर्म मसाले में मुख्तलिफ औकात में दाम बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। उसकी वजह ये है हमारा पैसा बहुत छोटा है और हमारी डिमांड ज़्यादा है। अच्छा, डॉलर भी इसकी वजह है कि डॉलर की कदर में हमने इजाफा देखा है, तो उसके इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं कि इस मसालों पे पड़ा है। बिल्कुल ये होता है भाई। वजह ये है कि हमारे यहाँ की पैदा होती नहीं है। जितनी भी गर्म मसाले जाते हैं सब बाहर से आते हैं। जब बाहर से आएंगे तो वो आएंगे डॉलर के हिसाब से। जी बिल्कुल, ये थे मोहम्मद असलम, जिनका बताना है कि डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से जो मसाला जात है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब मसाला जात की जो है वो तलब भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मसालों की कीमतों में इजाफा हम देख रहे हैं और कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ अगर डॉलर मुस्तहकम होता है तो यकीनन जो है वो मसाला जात की कीमतों में कमी बाकी हो सकती है। कराची में LPG की कीमत में 10 रुपये तक की कमी आ गई है। शहर में 260 रुपये किलो LPG फरोख्त की जा रही है। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश।
بالکل دیکھیں ایک جانب شہر میں گیس کے بدترین مسائل ہیں تو وہیں دوسری جانب لوگ متبادل کے طور پہ LPG کا استعمال کرتے ہیں. اچھی خبر ہے 10 روپے کی کمی ہوئی ہے. شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا 270 کی LPG 260 کی ہوئی ہے, کیا کہیں گے؟ سر یہ بات ہے کہ جیسا اگر گورنمنٹ ہے جتنا مہنگا کر سکتا ہے ہم مجبوراً لینا پڑتا ہے ہمیں مجبوری سے. اگر دوسری یہ بات ہے اگر ہم LPG استعمال اس وجہ سے کر رہے ہیں جو عوام کر رہا ہے کہ اس سے گیس ہمارا نہیں آ رہا, چولہے لوگوں کے بجھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. اگر انسان مجبوری سے اگر یہ LPG ہے یہ استعمال کرتا ہے تو یہ بند کمرے میں لوگوں کے کمرے بند بھی ہو سکتے ہیں, بچوں کے لیے بھی خطرہ, رات کو نیند میں بھی خطرہ, تو یہ انسانی کے لیے یہ صحیح نہیں ہے. اچھا 260 روپے کی LPG ہوئی ہے, کیا سمجھتے ہیں مزید سستی ہونی چاہیے؟ سستی ہونا چاہیے. غریب عوام ہے, کون سے یہ کروڑ پتی عوام ہے, ارب پتی ہے, وہ MNA MP ہے, وزیر اعلیٰ ہے, وزیر ہیں, یہ لوگ بیچارے غریب لوگ دیہڑی والے لوگ ہیں, دیہڑی میں صبح کماتے ہیں شام کو کھاتے ہیں. ان کے لیے اگر اتنا مہنگائی کرے اتنا کرے سمجھو ان کو تو آپ نے مروا دیا, یہ تو مرنے کا سبب ایک بنا دیا. بالکل دیکھیں ایک جانب SSGC کی نااہلی ہے کہ شہریوں کو گیس میسر نہیں ہے, لوگ LPG کا استعمال کرتے ہیں. 270 روپے کی LPG مل رہی تھی لیکن 10 روپے کی کمی ہوئی ہے, 260 روپے میں بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. رام سوامی کی راجکوٹ اسٹریٹ میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے. انتظامیہ پانی کی نکاسی میں ناکام نظر آئی. اسکول ہو یا مسجد ہر جگہ سیوریج کا پانی ہی پانی ہے. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید جانتے ہیں جنید جاوید وہاں پر موجود ہیں. جنید تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس وقت وہاں کی؟ جی بالکل بہت بری صورتحال ہے. اس وقت میں موجود ہوں رام سوامی کے علاقے میں, راجکوٹ اسٹریٹ کہلاتی ہے. یہاں پر تقریباً 1 درجن کے قریب یہ گلیاں ہیں جو کہ سیوریج کے پانی سے متاثر ہے. ہر گلی میں جو ہے وہ گٹر کھلا دکھائی دے رہا ہے. گٹر کے اوپر کہیں ڈنڈا لگا کر لوگوں نے جو ہے وہ انڈیکیشن دے رکھا ہے کہ یہاں سے جو ہے تھوڑا دور رہا جائے, جبکہ اسکول کے آگے مسجد کے آگے جو ہے وہ خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گٹر کے مین ہول کھلے پڑے ہوئے ہیں. لوگ بہت اذیت سے جو ہے یہاں پر رہ رہے ہیں کیونکہ وبائی امراض جو ہے وہ پھیل رہے ہیں, بچے بیمار ہو رہے ہیں. یہاں کچھ لوگ موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. بھائی جان یہ بتائیے گا کہ پانی کا یہ مسئلہ, نکاسی کا جو مسئلہ ہے یہ کب سے ہے اور کیا مشکلات ہیں؟ تقریباً اس کو کافی ٹائم ہو گیا ہے لیکن موسٹلی جو ہے تقریباً اس کو 2.5-3 مہینے ہو گئے جو کہ مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہا. اچھا تمام اداروں سے رابطہ کیا جا رہا ہے جو سیوریج سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے یہاں تک کہ CM ہاؤس کے اندر کمپلین کری ہے تو وہاں پر بھی یہ چیزیں جو ہے نا اس کو کوئی نوٹس میں نہیں لایا گیا, بلکہ وہاں سے تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کا پہلے جو ہے وہ کنزیومر نمبر دیں. تو بھائی میں گھر کا کام تو نہیں کروا رہا, میں تو علاقے کے کام کے لیے لوگوں کو پریشان ہے اس کی وجہ سے بات کر رہا ہوں. تو اس کے اوپر انہوں نے موبائل مطلب ٹیلی فون جو ہے انہوں نے بند کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ کھڑکی کے پیچھے ہیں اور ہم کھڑکی کے آگے, ہم ان سے کیا کر سکتے ہیں اگر وہ کھڑکی. بالکل مشکلات تو ہیں. یہ بھائی بھی یہاں موجود ہیں جو اپنے بچے کو اسکول سے لینے آئے تھے. بھائی جان کیسے گزر رہے تھے آپ؟ سر جی یہاں تو بہت بری حالت ہے, ہمیں ایک گلی سے نہیں مطلب مین روڈ سے گھوم کے جانا پڑتا ہے, حالانکہ ایک گلی برابر میں اسکول ہے اور یہاں سے ہم گزر کے برابر میں آ جائیں, مگر اتنی بری حالت ہے کہ ہم گزر نہیں پا رہے. اس کے لیے یہاں کے سیوریج کے جو بندے ہیں ندیم صاحب ہیں ان کو ہم متعدد بار کمپلین کر چکے ہیں 1 سال سے. پھر ایک جگدیش کمار صاحب ہیں جو پمپ انجینئر ہیں ان کو کمپلین کر چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے آگے جائیں. پھر یہاں کے علاقے کے DC انچارج ہیں DC ساؤتھ, ان کو کمپلین کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے اس سے آگے جائیں. تو ہم کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں؟ کوئی ایسا بندہ تو جو ریسپانسبل جو اس کو دیکھے یا کوئی لائن کو دیکھے. آپ دیکھیں کیمرے میں دکھائیں یہ ساری گلیاں بھری ہوئی ہیں, 90% تو گٹر کے ڈھکن ہی نہیں ہے, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, آگے پانی کس طرح جائے گا, لائنیں بند ہیں. پینے کا جی افسران ہو یا ادارے ہوں ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں. یہاں بہت سارے آپ کو اسکول کے بچے بھی دکھیں گے, اسی گلی کے اندر ان کے اسکول بھی ہے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. بیٹا کیسے جاتے ہو اسکول؟ کیچڑ میں سارے شوز یونیفارم سب گندے ہو جاتے ہیں؟ جی کوئی گر بھی آتا ہے, اتنی مشکل سے آتے, پتھر بہت مشکل ہو جاتی ہے یہاں سے جانے میں, کیچڑ بہت ہوتا ہے اور کوئی تو گر بھی. جی بالکل یہاں پر بچے بھی جو ہے مختلف اوقات میں جب صبح اور شام کی جب شفٹ ہوتی ہے تو اسی روڈ سے گزرتے ہیں. اگر یہاں پر اس جانب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر سیوریج کا پانی آپ کو پڑا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا, جبکہ یہاں پر اب سے کچھ دیر قبل ہم نے دیکھا ہے کہ سیوریج بورڈ کی 2 گاڑیاں بھی یہاں پر آئی ہیں, لیکن انہوں نے بھی جو ہے یہاں پر کوئی کام نہیں کیا ہے, صرف یہاں پر آ کر دیکھ کر جو ہے وہ چلے گئی ہیں. بہت چھوٹے چھوٹے بچے یہاں سے گزر کے جاتے ہیں. اگر آپ گٹروں کی بات کریں تو گٹریں کھلی پڑی ہوئی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ انتظامیہ انتظار کر رہی ہے کسی جانی نقصان ہونے کا. گٹریں مکمل طور پر ابلتے ہوئے بھی یہاں پر دکھائی دے رہی, جبکہ
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया था कि कराची की हर गटर पर जो है वो ढक्कन लगवाएंगे और बड़े पैमाने पर ढक्कन जो है वो बनाए भी गए थे, लेकिन वो ढक्कन हमें लगते हुए इस इलाके में तो लगे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर न सिर्फ मेयर कराची जो है वो इस मामले में तवज्जो दे, क्योंकि वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के वो चेयरमैन भी हैं, बल्कि वजीर बल्दियात भी मामले में मुदाखलत करें और इस इलाके का जो सीवरेज का मसला है उसको हल करवाएं। यहाँ पर 2 पंपिंग स्टेशन लगते हैं, एक जमीला पंपिंग स्टेशन और एक जो है इजेक्टर 12 पंपिंग स्टेशन लगता है, और दोनों पंपिंग स्टेशन के तहत इन मोहल्लिका इलाकों के रामस्वामी के जो है यहाँ पर पंपिंग का निज़ाम चलता है। जैसे ही ये पंपिंग का निज़ाम रुकता है तो इन इलाकों के अंदर जो है वो पानी उबलना शुरू हो जाता है और गटरों से पानी का बहाव जो है वो तेज़ी के साथ बाहर आना शुरू हो जाता है। लोग यहाँ मुतालबा कर रहे हैं जो है वो वोट लेने जिस तरीके से सियासी जमातों के नुमाइंदे इनके घर पर आए थे, उसी तरीके से अब यहाँ पर पहुँचकर जो है इनके मसाइल भी हल करवाएं। जी ठीक है, जुनैद जावेद हमें अपडेट कर रहे थे तफसीलात से, बहुत शुक्रिया। महमूदाबाद की एडमिन सोसाइटी में सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया है। इलाके में जमा सीवरेज के पानी ने सड़कों को तबाह कर दिया है। इलाका मुकीनों का कहना है 15 दिन से शिकायत करने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। मजीद आगाह करेंगे फरहान खान। जी बिल्कुल, शहर कायद के बेशतर इलाकों में नाकारा सीवरेज सिस्टम शहरियों के लिए जो है वो दर्द असर बनता चला जा रहा है। इस वक्त जो है वो मैं महमूदाबाद एडमिन सोसाइटी के अंदर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन सज्जाद अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे जो है वो सीवरेज के नाकारा निज़ाम के बायस जो है वो पानी जो है वो यहाँ गलियों में सड़कों पर जमा हो गया है, जो कि सड़कें जो है वो तबाह भी कर रहा है। जबकि ये आगे अगर आप मंजर देखें तो पूरा तालाब का मंजर पेश कर रहा है। गाड़ियों के आगे, गाड़ियों के नीचे, घरों के आगे जो है वो पानी जमा है। लोगों ने जो है वो मलबा डाल के जो है वो अपने घरों के आगे रास्ता बनाया हुआ है, जबकि ये सीवरेज का पानी जो है वो सड़कें तबाह करने की भी वजह बना। इस वक्त कुछ इलाका मकीन में हमारे हमरा मौजूद है, इनसे भी तफसीलात लेते हैं। मुझे बताइए कब से जो वो इलाके में ये सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम? ये तो तकरीबन 2 हफ्ते के करीब हो गए, इस तरह ही चल रहा है। तो इससे पहले ही मुसलसल 1.5 साल हो गया जो सीवरेज का निज़ाम इधर का लाइन ब्लॉक हुई हुई है। आते हैं सही करके चले जाते हैं, 2 हफ्ते ठीक रहता है, तीसरे हफ्ते फिर वैसी हालत हो जाती है इसकी। तो ये मुसलसल ही है तकरीबन 1.5 साल से, ये तो अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या ये हल है कि घरों के आगे इस तरीके से मलबा डाल के क्या निज़ाम बेहतर नहीं बनाया जाएगा? किससे नहीं बनाता है भाई, ये 3-4 साल हो गया हमें इधर आया हुआ। तकरीबन ये पानी कभी बंद नहीं हुआ। 10 दफ़ा दिन को हम लोग जाता है इसका दफ्तर में, शिकायत करता है, उधर वो वादे करता है, वादे के बाद आ जाता है, बस 1-2 घंटे में वो कर देता है, फिर वापस चला जाता है। सब हाल कोई नहीं निकालता है इसका। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इतना जो है वो मलबा भी जमा है, सीवरेज का पानी जो है वो सड़कें भी तबाह कर रहा है, बीमारियों की भी वजह है। बीमारियों की भी वजह है भाई। हम नमाज़ पढ़ने के लिए सुबह निकलते हैं, कसम खुदा की बहुत तकलीफ से जाना पड़ता है, ये तड़ों से जाना पड़ता है, दूर से उधर से आना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियाँ भी गुजरते हैं, चटके फेंकते हैं। आप खुद देखते हैं हाल आपका सामने है ना, और क्या इसमें सही। बिल्कुल, इस वक्त जो है वो इलाका मकीन भी हमारे हमरा मौजूद है, इनसे भी आपने तफसीलात सुनी कि गुज़िश्ता 15 रोज़ से जो है वो सीवरेज का निज़ाम जो है वो इस वक्त सोसाइटी में तबाह हाल है, जबकि गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो सीवरेज का निज़ाम भी जो है वो ख़राब है। मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद भी जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म का कोई जो है वो अमल नहीं लाया गया है। इस वक्त जो है वो सीवरेज के निज़ाम के बायस जो है वो घरों के आगे जमा पानी जो है वो मकीनों के लिए शदीद मुश्किलात का बायस बना हुआ है। जी, पाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का 50वां इजलास माली बहरान को भी सेनेट के इजलास का हिस्सा बना लिया गया है। मजीद इस पर बात करेंगे आयमा खान से। जी आयमा। जी बिल्कुल, देखिए वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का 50वां इजलास माली बहरान को भी सेनेट के इजलास का हिस्सा बना लिया गया है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी शदीद माली बहरान का शिकार हो गई के इजलास ठीक है आयमा खान, साथ मौजूद रहिएगा। जामिया उर्दू की इस्लामाबाद मुंतकली के मामले पर कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक ने सदर पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है। ख़त में क्या कहा गया है, बात करेंगे। आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, अपडेट कीजिएगा इस बारे भी। बिल्कुल, देखिए उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद मुंतकली से हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल पर सवाल कल इस्लामाबाद में मुनक्किद होकर ठीक है आयमा खान, अपडेट करें थी, बहुत शुक्रिया। शहर कायद में डाकू बेलगाम एक और मासूम शहरी मोबाइल फ़ोन बचाते हुए मौत की वादी में पहुंच गया। मजीद बताएंगे शाहज़ेब हुसैन। जी बिल्कुल, शहर कायद में जराइम का जिन जो है बेकाबू हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ जो है कोरंगी विलायत शाह मज़ार के पास से होते हुए मलिर आने वाला जो शहरी है अतर,
اس کو جو ہے ڈاکو نے گولی ماری تھی، جو کہ دوران علاج دم توڑ گئے۔ میں اس وقت ان کے گھر پر موجود ہوں اور یہاں پر لواحقین جو ہے غم سے نڈھال ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مقتول اطہر 3 بچوں کا باپ تھا اور کورنگی میں درزی کی دکان پر جو ہے ملازمت کرتے تھے، جبکہ ساتھ ساتھ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے وہ شرافی گڑھ تھانے کی حدود میں پیش آیا ہے۔ پولیس نے اس واقعے کا جو مقدمہ درج کیا ہے، اس وقت ہمارے ساتھ ان کے دوست اور احباب وغیرہ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ یہ بتائے گا کہ اطہر صاحب کے ساتھ کیا حادثہ رونما ہوا تھا اور آپ لوگوں کو جب اطلاع ملی اور ان کا جب وہ زخمی تھے اور جب علاج چل رہا تھا، کیا معاملات پیش آئے تھے؟ یار وہ اصل میں جاب پہ سے گھر پہ آ رہے تھے تو ان کو ڈکیتوں نے روکا ہے ملیر ندی کے اندر، ولاج علی شاہ بابا کی طرف ملیر ندی ہے وہاں سے، تو مزاحمت تھوڑی بہت ہوئی۔ لازمی سی بات ہے 3 دن پہلے انہوں نے موبائل خریدا، بندہ ایک غریب آدمی، تو وہ چھیننے پر انہوں نے مزاحمت کی تھوڑی سی، تو انہوں نے گولی مار دی ان کو۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ لوگ پڑے رہے، خون نکلتا رہا، کوئی اٹھانے والا ہی نہیں تھا۔ پھر کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چلا، پھر انہوں نے خود اپنے جہاں جاب پہ کام کرتے تھے جہاں پہ دکان پہ ان کو بتایا، پھر وہ آئے، پھر اس طرح سے خبر پھیلی، تھانے میں بات ہوئی، پھر ان کو لے کے گئے اسپتال، تو وہاں پہ دوران علاج جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ باقی اچھا یہ بتائے گا کہ مقتول اطہر کے کتنے بچے تھے اور ان کا محلے میں رویہ کیسا تھا؟ یار محلے کی تو ہر دل عزیز لوگوں میں سے ہیں، اور دوسری بات بچے ان کے 3 ہیں اور بڑا جو بیٹا ہے وہ 10 سال کا ہے۔ جی بالکل افسوسناک واقعہ رونما ہوا، تاہم پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 3 ملزمان نے جو ہے لوٹ مار کی تھی اور مزاحمت کرنے پر جو ہے اطہر کو جو ہے گولیاں ماری۔ تاہم اس واقعے کا جو ہے مقدمہ درج ہے اور اس حوالے سے پولیس کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جلد جو ہے ملزمان بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ 7 سالہ ابان کے ملزم کو جوڈیشل مجسٹریٹ وسطی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ مزید بتائیں گے جواد آصف۔ جی بالکل، دیکھیں فیڈرل بی ایریا میں 7 سال کے آبان کے دلخراش قتل کا واقعہ ہے، جس کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ وسطی کی عدالت میں ہوئی ہے۔ پولیس نے ملزم سفیان کو عدالت کے روبرو پیش کیا۔ پولیس کی جانب سے ملزم کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، تاہم عدالت نے ملزم کو منگل تک کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے پیشرفت رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم سفیان کی عمر 16 سال ہے اور وہ آبان کا کزن تھا۔ اب ملزم کا نفسیاتی معائنہ بھی کروانا ہے، جبکہ اسے مزید تفتیش بھی کرنی ہے اور اس کا جو ہے وہ CRO ریکارڈ بھی جو ہے وہ نکلوانا ہے اور کروانا ہے، جبکہ تفتیشی افسر کا یہ کہنا تھا کہ ملزم کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ چکی ہے، وہ اقبال جرم بھی کر چکا ہے۔ اب واقعے کا مقدمہ تھانہ یوسف پلازا میں درج کیا گیا۔ شکریہ اپڈیٹ کرنے کی۔ چھٹے سندھ کالج گیمز انٹر ڈسٹرکٹ ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ کے مقابلے جاری ہیں، اپڈیٹ کریں گے محمد حماد۔ چھٹے سندھ گیم میں انٹر ڈسٹرکٹ جو ہے ٹیبل ٹینس کا جو ٹورنامنٹ ہے اس کے جو ہے مقابلوں کا آغاز جو ہے سندھ اسپورٹس بورڈ میں ہو چکا ہے اور اس وقت جو ہے وہ راؤنڈ کے میچز کھیلے جا رہے ہیں، جس میں 5 جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کی ٹیمیں یہاں پر مد مقابل ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آرگنائزر موجود ہیں جو کہ اس ایونٹ کی چیئرپرسن ہے، جو کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ کماڑی اس کو آرگنائز کر رہا ہے، شازیہ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اس دفعہ جو ہے کراچی ریجن یعنی ٹاپ کرنے جا رہا ہے، جو لڑکیوں میں ٹیلنٹ دکھ رہا ہے اس سے یہی لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ سب سے پہلے یہ کہ ہمارا سندھ کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہم مبارکباد پیش کریں گے کہ بہت اچھے اس دفعہ میچز کے انعقاد کرائے، اور خصوصیت کے ساتھ جو ہم نے ڈسٹرکٹ وائز ڈیوائیڈ کیا اور ہر ڈسٹرکٹ میں پہلے الگ انٹرا ڈسٹرکٹ مقابلے ہوئے اور اب ہم سیکنڈ فیز میں ہیں انٹر ڈسٹرکٹ۔ آج یہاں پہ بیڈمنٹن اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ چل رہا ہے اور اس وقت 5 ڈسٹرکٹ کی طالبات ہیں۔ یہ سب سے زیادہ آپ دیکھیں خوش آئند بات ہے، اس وقت گرلز ہیں بھرپور صلاحیتوں کے، یہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں میچز جیت کے آئے ہیں اور اس وقت 5 ڈسٹرکٹ کے جب میچز ہوں گے اور جو ون کریں گی وہ کراچی ریجن سے نیکسٹ اسٹیپ جو ہے، جو پھر ریجنز کے درمیان میں مقابلے جو 5 ریجنز ہیں اس میں یہ تمام جو ہے نا کراچی سے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے جو آپ دیکھیں بچیوں کو بہت اچھے مواقع ملے ہیں اور بہت اچھا کھیل رہی ہیں یہاں پہ بچیاں انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اورنگی ٹاؤن 11C گرلز کالج کی پرنسپل بھی ہیں اور جو ڈسٹرکٹ ویسٹ اور کماڑی کی چیئرپرسن بھی جو اس ایونٹ کو آرگنائز کر رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بچیوں کو زبردست مواقع ملے ہیں، وہ یہاں سے اویل کر کے جو یہاں سے فائنل ٹیم جیتے گی وہ جو ہے پھر وہ کراچی ریجن کو ریپریزنٹ کرے گی اور جو ہے وہ پھر انٹر ریجن ٹورنامنٹ ہوں گے، جس میں جو ہے وہ جو ہے حیدرآباد، لاڑکانہ، بے نظیر آباد، سکر اور کراچی ریجن، یہ 5 ریجن
के दरमियान जो है वो आपस में ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर में आज शाम और रात में हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्के है। अपडेट करेंगी सबा परवेज। जी बिल्कुल, शहर कायद के मौसम के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ समंदर की हवाएं बहाल होने से आज जो है वो मौसम काफ़ी हद तक बेहतर और खुशगवार हो चुका है। शुमाल मगरिब की जानिब से जो है वो हवाओं का सिलसिला जारी है। 27 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि साथ ही साथ शहर में धूप छाँव का सिलसिला भी जारी है। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से अब मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जबकि 24 घंटों में जो है वो आइंदा 24 घंटों में शहर में शाम के औकात में बिलखुसूस जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला भी शुरू हो सकता है और साथ ही साथ हवाओं की जो रफ्तार है उसमें भी तब्दीली आ सकती है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि हवाओं की रफ्तार रुख बदलने से जो है वो फ़िज़ाई मेयार जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची जो है वो इस वक्त 16वें नंबर पर मौजूद है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक जो है वो फ़िज़ा में आलूदगी के ज़रात 116 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड किए गए, जबकि आज हवा में नमी का तनासुब जो है वो 79% तक रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। महकमा कॉलेज एजुकेशन के तहत BS प्रोग्राम साल 2024 की तारुफी तकरीब हुई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, देखिए महकमा कॉलेज एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम BS साल 2024 की मुनासिबत से एक तकरीब जो है वो मुनक़िद की गई है, जिसमें बेसिकली आज की जो तकरीब है ये ओरिएंटेशन तकरीब है, जो कि BS के जो असातिज़ा हैं उनके लिए जो है आज मुनक़िद की गई है, जिसमें बतौर मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर तालीम सिंध राना हुसैन तकरीब में मौजूद हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी कॉलेजेस सिंध सदफ़ अनीस भी इस तकरीब में मौजूद है। इसके हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है डायरेक्टर कॉलेजेस जनाब कासिम राजपर। मुझे बताइएगा क्या ओरिएंटेशन है और बिलखुसूस इसका क्या मकसद है? अच्छा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम का मकसद है कि जो BS प्रोग्राम एक तो हमारे पास कुछ कॉलेजेस में चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं पूरे सिंध में जितने कॉलेजेस हैं, जहाँ जहाँ पे भी पहले ग्रेजुएशन की तालीम दी जाती, क्योंकि एक की पॉलिसी अब तब्दील हुई है तो हम BS की तरफ जाना चाह रहे हैं। आज उस सिलसिले में ये ओरिएंटेशन डे है या ओरिएंटेशन के एक सेशन है, जिसमें मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के सिलेक्टेड जो असातिज़ा हैं, सिलेक्टेड कुछ प्रिंसिपल हजरात हैं और रीजनल डायरेक्टर्स जो तमाम सिंध के हैं कॉलेजेस के, वो आए हुए हैं। मिनिस्टर साहब आई हुई हैं, सेक्रेटरी साहब आई हुई हैं। लेकिन इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है कि बच्चे जो अगर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल नहीं कर पाते, उनको हम किस तरीके से अल्टरनेट के तौर पे, मुतबादल के तौर पर कॉलेजेस में वही तालीम दे सकें जो यूनिवर्सिटी में दी जा रही है। तो बुनियादी मकसद यही है, जिसमें आज कराची यूनिवर्सिटी से भी आए हुए हैं कुछ प्रोफेसर हजरात और आज NLD यूनिवर्सिटी से भी कुछ प्रोफेसर हजरात आए हुए हैं। और इस सिलसिले में ये ग्रुप डिस्कशन होगी कि हम इसको फेज़ आउट किस तरीके से जाएं और किस तरीके से जो हम अच्छी से अच्छी तालीम दे सकते हैं हम कॉलेजेस में बच्चों के बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम से आरास्ता करना है। बिलखुसूस आज की इस तकरीब का यही मकसद है। और जैसे कि कासिम राजपर ने फरमाया कि आज की इस तकरीब में ना कि सिर्फ कॉलेजेस से वाबस्ता जो प्रोफेसर्स हैं वो मौजूद हैं, जबकि कराची यूनिवर्सिटी, IDD यूनिवर्सिटी और दीगर जामियात के जो प्रोफेसर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ताहम ये जो ओरिएंटेशन जो है इस वक्त यकीनन अभी भी जारी गुजारी है और कुछ ही देर में निगरान वज़ीर तालीम सिंध राना हुसैन जो है तकरीब से खिताब करेंगी। जी, KDA ग्राउंड करंगी में यंग सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं। अपडेट करेंगे जावेद इकबाल। जी, मैं सर KDA ग्राउंड करंगी मौजूद हूँ, जहाँ पर टूर्नामेंट मुनक़्क़िद किया गया है। 8 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों से टीमें आई हैं। ज़बरदस्त लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे साथ टूर्नामेंट के मुंतज़मीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या फॉर्मेट है टूर्नामेंट का, कितनी टीमें अब तक क्या इसमें पोजीशन है? ये इसमें मतलब सेम PSL वाला सिस्टम है। ड्राफ्टिंग की है 8 टीम से टोटल ना, नॉकआउट है। मतलब ये जो है अभी फर्स्ट सेमीफाइनल हो गया है, सेकंड उसका अभी पोल का हो रहा है ये मैच ना। तो ये हमारे दानिश भाई हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया टूर्नामेंट। ये इनकी सारी काविशें हैं। क्या फॉर्मेट है, कितने ओवर का मैच हो रहा है और किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आ रहा है माशाल्लाह, क्योंकि यहाँ के KDA की क्रिकेट को बहाल करने का हमारा एक तरीका ये भी था कि हम ड्राफ्टिंग के ज़रिए, जिस तरह हम ड्राफ्टिंग करवाई हमने लांडी कुरंगी, तमाम प्लेयर यहाँ पर मौजूद हैं, अच्छे बुरे हर यहाँ पर लड़का मौजूद है। लांडी कुरंगी की क्रिकेट बिल्कुल ही तबाह हो चुकी है इस टाइम पे।
कुछ मसाइल ऐसे हैं ग्राउंड में आप हालत दे सकते हैं, अभी भी हमने खुद ही काम करवाया, किसी मदद आपके तहत काम आपके तहत हमने ये काम करवाया। अगले भी इवेंट हमारे हैं, इससे अगले संडे दोबारा एक बड़ा इवेंट है, इस संडे भी एक इवेंट आपके सामने चलता हुआ आ रहा है। और इससे यही है हमारे को मोटिव, हमारा यही है कि यार लड़कों को प्रमोट करना है। और दूसरा ये है कि हमारे KDA में जितने भी इंतज़ामिया के लोग हैं उनको बढ़ चढ़ के इस पर हिस्सा लेना चाहिए, ग्राउंडों को आबाद करना चाहिए और मवेशी वगैरह जो भी हैं यहाँ पर उनके मसाइल हल करें। आपके सामने ग्राउंड अभी कितना अच्छा लग रहा है, वरना आप एक दिन पहले यहाँ पर आते तो आपको पता चलता है इस ग्राउंड की हालात क्या है। सुना आपने कि मुंतज़मीन जो है इवेंट तो करा रहे हैं लेकिन वो फ़िक्रमंद भी ग्राउंड की हालत ज़ार पर। उनका कहना था कि ग्राउंड की हालत ज़ार जो मुतलका इंतज़ामिया वो दुरुस्त करे ताकि नौजवान यहाँ पे बासानी क्रिकेट खेल सके। ग्राउंड में कहीं घास तो नहीं लेकिन मिट्टी भी जगह जगह है, कहीं पत्थर है, नाहमवार ग्राउंड है, लेकिन नौजवान अपनी खेल और सेहतमंद सरगर्मी को जारी रखे। उनका कहना है कि हम कोशिश करते रहेंगे और लोगों को दस्तक देते रहेंगे इस ग्राउंड की बेहतरी के लिए। जी बहुत शुक्रिया।